Hello everyone. Welcome to our YouTube channel LinguaSouls. And today we have brought before you lesson 6 from your NCERT book Beehive. The name of the lesson is My Childhood. This chapter has been taken from Wings of Fire, written by the great Indian Dr. APJ Abul Kalam, a scientist and a statesman. And it is very interesting to read about his early childhood. He has described his memories when he used to live there in Rameshwaram, about his friends, the Orthodox society in those days, but at the same time, how there were people, those who were sensible, who knew the importance of unity, that there should not be any cultural differences among people. So let us read and understand more about the early childhood of this noble soul. Dr. APJ Abdul Kalam. He is popularly known as the Missile Man of India. He became the 11th President of India in 2002. In his autobiography, Wings of Fire, he speaks of his early childhood. So let us begin. I was born into a middle class Tamil family. Please notice the word I was born. It is in narrative form because it has been taken from his autobiography. So he himself is narrating about his childhood. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। रामेश्वरम में एक आइलैंड है। आइलैंड होता है ज़मीन का वो टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो। और मद्रास में erstwhile तत्कालीन उस समय के मद्रास राज्य में it is before independence when India did not exist as a country. In fact, there were several states. My father, Jainal Abdin, had neither much formal education nor much wealth. इनके पिताजी का नाम जैनुल आब्दीन था। ना तो वो बहुत अधिक पढ़े लिखे थे और ना ही बहुत पैसे वाले। Despite these disadvantages, बावजूद इसके कि उनके साथ कुछ कमियां थीं कि ना वो अधिक पढ़े लिखे थे ना पैसे वाले, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. लेकिन बहुत ही बुद्धिमान और काबिल व्यक्ति थे, उदार और दयालु स्वभाव के थे, generous spirit थी. He had an ideal helpmate in my mother आशियम्मा, और इनके पिताजी जैनुल आब्दीन को इनकी माँ जी आशियम्मा के रूप में एक आदर्श जीवन संगनी या लाइफ पार्टनर मिली. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. कलाम साहब बताते हैं कि मुझे ये तो याद नहीं कि हमारे यहाँ रोज कम से कम कितने लोग खाना खाते थे, लेकिन उनका कहना है कि मैं ये बात निश्चितता से कह सकता हूँ कि बाहरी व्यक्तियों के खाने वालों की संख्या घर के परिवार के सदस्यों के खाने वाले संख्या से ज़्यादा होती थी. इसका सीधा सीधा मतलब है कि इनकी माताजी भी बहुत दयालु थीं और दिल बहुत बड़ा था. कोई रिश्तेदार हैं, कोई गरीब है, कोई दूसरा है, तो खाना पीना खाने और खिलाने में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होती थी. Now this clearly tells that he has inherited the goodness and the virtues both from his father as well as from his mother. उनको ये दयालु स्वभाव जो उनके अंदर भी दिखता था, डॉक्टर कलाम साहब में भी दिखता था, वह अपने माता पिता से एक विरासत के रूप में मिला था.
I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks. कई भाई बहन में से एक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब भी थे. A short boy with rather undistinguished looks. हाइट भी बहुत अधिक नहीं थी. दिखने में कहीं से भी कोई बेहद खूबसूरत या विलक्षण प्रतिभा के नहीं लगते थे. Born to tall and handsome parents. जबकि उनके माता पिता हाइट में भी अच्छे थे और दिखने में भी खूबसूरत थे उनके अकॉर्डिंग. We lived in our ancestral house. और ये अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे. Which was built in the middle of the 19th century. 19वीं सदी के मध्यकाल में ये मकान बनवाया गया था जिसमें वो रहते थे. It was a fairly large पक्का हाउस. काफ़ी बड़ा पक्का घर था. Made of limestone and brick. उस समय चूने और गारा और मिट्टी से जो घर बना करते थे वैसा बना हुआ घर था. On the Mosque Street in रामेश्वरम. मस्जिद वाली जो रोड है उस पर इनका घर था. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. इनके पिताजी austere नेचर के थे. इसका मतलब होता है सादगी पसंद इंसान. A man who loves simplicity. और ये जीवन की सारी ज़रूरतें तो प्रोवाइड करते थे लेकिन लग्जरीज को अवॉइड करते थे. ऐसी चीज़ें नहीं देते थे जो गैर ज़रूरी हों. यही होता है सादगी पसंद इंसान. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and इमोशनली. कलाम साहब बोलते हैं कि पिताजी भले ही स्ट्रिक्ट थे, सादगी पसंद थे, पर खाना पीना कपड़ा दवाइयाँ इनमें से किसी चीज़ की कमी नहीं रखी गई. हाँ, अगर आप कहें कि होटल्स घूमना फिरना और ये सब चीज़ें जो लग्जरीज में शामिल हैं ये उनकी पसंद में नहीं आता था. कुल मिला के कलाम साहब कहते हैं कि उनका बचपन काफ़ी अच्छा बीता. The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1939 में तब कलाम साहब केवल 8 वर्ष के थे. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. बोलते हैं एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि उसके बाद इमली के जो बीज थे उनकी मार्केट में अचानक डिमांड क्यों और कैसे बढ़ गई. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. मैं इमली के बीज इकट्ठे करता था और उनको मस्जिद वाली रोड पर ही एक प्रोविजन स्टोर की दुकान थी, किराने की दुकान थी, उस पर बेच देता था. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना. और दिन भर के बीज बेचने के बाद मुझे 1 आना मिल जाता था जो उस समय एक बच्चे के हिसाब से काफ़ी बड़ा अमाउंट होता था, एक अच्छा खासा पैसा होता था. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in दीनामणि. इनके जो ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन थे वो इनको युद्ध के बारे में बातें बताते थे और बाद में दीनामणि अखबार में उसे पढ़ने की कोशिश भी करते थे कि उसमें क्या निकला है क्या नहीं, कहाँ पर युद्ध से रिलेटेड क्या समाचार है. सो ही वॉज अ वेल अवेयर मैन. आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर. क्योंकि ये लोग रामेश्वरम में एक आइलैंड में रहते थे जो कि शहर से दूर है, इसीलिए यहाँ पर युद्ध से रिलेटेड किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी. अनअफेक्टेड बाय द वॉर. बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू जॉइन द अलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड. उस समय भारत अंग्रेज़ों के अधीन था तो अंग्रेज़ों की तरफ से भारत की सेना को भी युद्ध में शामिल कर लिया गया और तब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई.
The first casualty came in the form of the suspension of the train that halt at Rameshwaram station. रामेश्वरम स्टेशन पे जो ट्रेन रुका करती थी उसका जो स्टॉपेज है वो कैंसिल कर दिया गया। अब ये इनके लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो गई। जो अखबार के बंडल उतारा करते थे इनके भाई लोग उसमें इनको प्रॉब्लम हुई, क्योंकि अब यहाँ से वो बंडल्स को फेंकना पड़ेगा, तभी न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो सकेगा। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में जो सड़क है जो पटरी किनारे पड़ती है, वहीं से अब ट्रेन से उन बंडल्स को गिराना होगा। That forced my cousin Samshuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to took for a lead helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. जो इनके कज़न शमशुद्दीन थे न्यूज़पेपर बांटने के लिए, अब उन्हें एक एक्स्ट्रा आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। शमशुद्दीन जब ट्रेन से न्यूज़पेपर के बंडल्स को नीचे गिराएंगे तो कोई आदमी उन्हें कैच करने या कलेक्ट करने को चाहिए होगा। उसके लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत थी और डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जो है उस समय बचपन में एक बच्चे के तौर पे उन्होंने अपने कज़न शमशुद्दीन का हाथ बटाना शुरू किया न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूशन के काम में। शमशुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, और इस काम के लिए उनके कज़न शमशुद्दीन ने उनको जो कुछ पैसे दिए ये एक तरीके से उनकी पहली कमाई थी। हाफ अ सेंचुरी लेटर I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time। और वो बोलते हैं कि 50 साल बाद भी भले ही उन्होंने जीवन में कितने भी मुकाम बड़े बड़े हासिल कर लिए हों, लेकिन वो अपनी जो पहली कमाई थी वो आज भी उसे याद कर करके खुश होते हैं। Every child is born with some inherited characteristics। हर बच्चा अपने माता पिता से कुछ अनुवांशिक गुण इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर पैदा होता है इनटू स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। और बच्चे का जन्म जिस परिवार में होता है, हर परिवार का अपना एक सामाजिक और आर्थिक माहौल होता है। हर घर के रीति रिवाज, परंपराएं, उसूल, सोच विचार थोड़े थोड़े अलग होते हैं और सबकी आर्थिक परिस्थितियां भी अलग होती हैं। And trained in certain ways by figures of authority। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनहेरिटेड तो नहीं है पर आदत के रूप में माँ बाप के द्वारा दी जाती हैं। स्ट्रिक्ट रहकर वो अपने बच्चों में कुछ अच्छी आदतें डालते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेज आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मुझे ईमानदारी और अनुशासन अपने पिताजी से मिला। From my mother I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters। और माँ से उनको अच्छाई मिली, भगवान में विश्वास मिला, दया काइंडनेस वाला स्वभाव मिला। बोलते हैं ये सिर्फ मेरे ही साथ नहीं था, मेरे 3 भाई और जो मेरी बहन है उन सब के अंदर भी यही गुण थे, क्योंकि पूरे परिवार का माहौल अच्छा था। I had 3 close friends in my childhood, रामानाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये 3 उनके परम मित्र थे, बचपन से ही उनके फास्ट फ्रेंड्स थे। All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families। तीनों के तीनों ही हिंदू थे और ब्राह्मण परिवार को बिलोंग करते थे। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves। और बचपन में हम लोगों ने कभी ज़रा सा भी अंतर महसूस ही नहीं किया कि जाति, मजहब, धर्म नाम के कोई भेदभाव एग्जिस्ट करते भी हैं। बच्चा तो सिर्फ बच्चा होता है और उसके लिए अमीर गरीब, ऊंच नीच और किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे किसी किस्म के धार्मिक भेदभाव एग्जिस्ट नहीं करते। Among ourselves,
बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस इन अपब्रिंगिंग, क्योंकि किसी किस्म का रिलीजियस डिफरेंस उन्होंने महसूस ही नहीं किया, ना ही उनको उनकी परवरिश में कभी ये अंतर बताए गए हैं कि हम लोग इस धर्म के हैं, वो लोग उस धर्म के हैं, हमारी ये जाति है, उनकी वो जाति है, हम सुपीरियर, वो इन्फीरियर, ऐसी कोई चीज़ उनको सिखाई ही नहीं गई कभी। इनफैक्ट रामनाथ शास्त्री was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the highest priest of the Rameshwaram temple. बल्कि उनके जो मित्र हैं रामानंद शास्त्री, वो तो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी के बच्चे थे, जो कि रामेश्वरम मंदिर के हेड पुजारी थे। लेटर he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. बाद में रामनाथ शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी के जो बेटे थे वो रामेश्वरम मंदिर के हेड पुजारी भी बने। Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, जबकि उनके जो दूसरे दोस्त अरविंदन थे उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस शुरू किया। तीर्थयात्रियों को लाने ले जाने वाली जो गाड़ियाँ चलती हैं वो उसके बिजनेस में चले गए। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज, जबकि उनके जो तीसरे मित्र शिव प्रकाशन थे वो रेलवे में जो खाने की जो सप्लाई ट्रेन्स में होती है, स्टेशंस पे होती है, उन्होंने केटरिंग का बिजनेस स्टैब्लिश किया सदर्न रेलवेज के लिए। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी, जो राम सीता का विवाह की जो एक त्योहार मनाया जाता है उसके दौरान, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी, आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स with a special platform for carrying idols of Lord Ram from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near our house. इनका परिवार, ये तो नाविक परिवार के थे ही, नाव चलाने का काम किया करते थे। इनके परिवार के दूसरे सदस्य तो अपनी नाव में पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाकर भगवान श्री राम की जो मूर्ति है, प्रतिमा जो है, उसको विवाह स्थल या मंडप जो हुआ करता था जहाँ पर नदी के बीच में राम तीर्थ जिसे बोलते थे, वहां तक लेके जाया करते थे। Which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of the prophets were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. जैसे छोटे बच्चों को दादी नानी मम्मी कहानियाँ सुनाती हैं, तो वो बताते हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था तो हमारी मम्मी और हमारी दादी रामायण के किस्से सुनाया करती थी। साथ ही साथ जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, पैगंबर मोहम्मद, उनसे रिलेटेड या अपने धर्म से रिलेटेड जितने भी अच्छे महापुरुष हैं उन सब की कहानियाँ और उनके किस्से भी उनको सुनाए जाते थे, बिना किसी भेदभाव के। हिंदू मुस्लिम जैसा किसी किस्म का कोई भेदभाव एग्जिस्ट करता ही नहीं था, सोच में ही ऐसी चीज़ें नहीं थी, ना उनकी परवरिश में, ना उनके संस्कारों में, ना उनकी सोच में। इसीलिए तो इतने महान व्यक्तित्व वो बन पाए। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, एक बार का वो किस्सा सुनाते हैं कि जब वो मात्र छोटे बच्चे थे, 5th क्लास में पढ़ते थे, रामेश्वरम के ही प्राथमिक स्कूल में। एलिमेंट्री स्कूल इज अ स्कूल अप टू क्लास 5। अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नए शिक्षक आए उनकी क्लास में। आई यूज्ड टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, जैसे जाली वाली एक टोपी होती है वैसी वो टोपी पहना करते थे, जिससे देख के कोई उन्हें समझ जाएगा कि वो मुस्लिम है। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामनाथ शास्त्री, और सबसे आगे की रो में मैं अपने दोस्त रामनाथ शास्त्री के साथ में ही बैठता था। हु वोर द सेक्रेड थ्रेड, वो जनेऊ भी पहना करता था, यानी एक ब्राह्मण जो जनेऊधारी है और दूसरा एक मुस्लिम जो जाली वाली टोपी पहनता है। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, जो नए शिक्षक आए थे शायद उनको ये बात हजम नहीं हुई
कि एक मुस्लिम बच्चा एक ब्राह्मण बच्चे के साथ में कैसे बैठा है। In accordance with our social ranking as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँ कि इन लोगों की सोच अच्छी थी, पर पूरे समाज में एक जैसी सोच एग्जिस्ट नहीं करती थी। शायद उनके जो नए शिक्षक आए हैं वो कंजर्वेटिव सोच के थे और उनको ये बात हजम नहीं हुई कि समाज में जो सबसे ऊंचे कुल में माने जाने वाले लोग हैं ब्राह्मण, वो उनके साथ में एक मुस्लिम बच्चा कैसे बैठा है। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और इसलिए उस नए टीचर ने कलाम साहब को पीछे की बेंच पे भेज दिया। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामनाथ शास्त्री। बोलते मुझे तो बहुत बुरा लगा ही, साथ ही मेरे दोस्त को भी बहुत बुरा लगा। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, और रामनाथ शास्त्री बेहद निराश हो गए। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। और उनके दोस्त की आंखों में भी आंसू थे। बोलते हैं वो आंसू जो मैंने अपने दोस्त की आंखों में देखे, आजीवन मैं उन्हें भुला ना सका। मुझे हमेशा याद रहेगी ये बात कि कैसे बच्चों के मन में किसी किस्म के भेदभाव या अंतर होते नहीं हैं, लेकिन समाज में कुछ गलत सोच विचारधारा के जो लोग हैं ये मतभेद और ये अंतर पैदा करने की कोशिश कर देते हैं। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल से घर जाने के बाद हम दोनों ने ही अपने अपने माता पिता को ये बात बताई। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, और लक्ष्मण शास्त्री जी ने उस टीचर को बुलवाया। इन अवर प्रेजेंस, हम दोनों की मौजूदगी में उसको बुलाया गया। टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। उनकी डांट लगाई गई कि इस प्रकार का जहर बच्चों के मन में और समाज में घोलने की कोशिश ना करें। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. और लक्ष्मण शास्त्री जी ने टीचर को डांटा और कहा कि या तो माफ़ी मांगी जाए, अन्यथा इसी समय इस स्कूल को और इस आइलैंड को छोड़ के आप चले जाएं। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. टीचर ने माफ़ी तो मांगी ही, उनके अंदर परिवर्तन भी आ गया और उसके बाद उन्हीं टीचर के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन और सुधार देखने को मिला। नाउ हियर वी लर्न कि अगर हम गलत चीज़ को बढ़ावा देते हैं तो समाज में कैसे नफ़रत और गंदगी फैल जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन अगर किसी गलत चीज़ के ऊपर सही स्टेप उसी समय उठा लिया जाए तो हम समाज में होने वाले आने वाले समय में होने वाला जो बड़ा नुकसान हो सकता है उससे बच सकते हैं। कितनी साफ, कितनी सुलझी हुई सोच हमें इस चैप्टर में पता लगती है। यही कारण था कि अच्छे समाज में अच्छे संस्कारों के बीच में जब परवरिश होती है तब ऐसे ही व्यक्ति निखर कर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के रूप में सामने आते हैं। उनका वो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा और एकदम प्योर पर्सनालिटी देख के सभी के दिल से में उनके लिए एक रिस्पेक्ट की भावनाएं अपने आप ही आ जाती हैं। कोई उनको देख के कभी इस तरीके से सोचता ही नहीं कि वह हिंदू थे या मुस्लिम थे, वह तो सच्चे भारत रत्न थे। Society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. बल्कि रामेश्वरम का जो छोटा सा समाज है, बड़ी जगह थी नहीं, ज़्यादा लोग थे नहीं, वो लोग किसी भी किस्म के ये जो सेग्रीगेशन थे कि एक समाज दूसरे से अलग है, इस सब के वो सख्त खिलाफ थे। However, my science teacher Shiva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. इनके जो साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्या अय्यर थे तो वो टिपिकल ब्राह्मण
और उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही कंजर्वेटिव सोच की थी, लेकिन जो उनके सर हैं, उनके जो टीचर हैं, वो एक विद्रोही किस्म के थे। वो इन सब चीज़ों के सख्त खिलाफ थे। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. उन्होंने समाज में पूरी कोशिश करी कि किसी तरह वो ऐसे कुछ काम करें जिससे ये भेदभाव खत्म हो जाए। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने को और निखारो, डेवलप करो, ताकि तुम बड़े शहर के लोगों से, जो पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, उनके समकक्ष, उनके एट पार आ सको। One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. एक दिन मेरे टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर जी ने मुझे घर पे खाने पे बुलाया और उनकी पत्नी जो थी वो सुन के नाराज हो गई कि हमारी प्योर ब्राह्मण वाली किचन, और इसमें अगर एक मुस्लिम बच्चा खाना खाएगा, एक मुस्लिम बच्चा खाना खाएगा तो वो अपवित्र हो जाएगी। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, और उन्होंने अपने किचन में मुझे खाना खिलाने से मना कर दिया। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट perturbed. वो जरा भी विचलित, व्याकुल या डिस्टर्ब नहीं हुए। Nor did he get angry with his wife. ना ही वो गुस्सा हुए। But instead served me with his own hands. बल्कि उन्होंने तो अपने हाथों से मुझे खुद खाना खिलाया। And sat down beside me to eat his meal. और मेरे बगल में बैठ के खुद भी खाना खाया। His wife watched us from behind the kitchen door. और उनकी पत्नी किचन में दरवाजे के पीछे से दूर से उनको देख रही थी। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. कलाम साहब को लगता है उन्होंने पता नहीं क्या ऐसा वहां से डिफरेंस देखने की कोशिश करी कि क्या मेरा चावल खाने का तरीका औरों से अलग है, क्या ब्राह्मण व्यक्ति के पानी पीने के तरीके से मुस्लिम व्यक्ति के पानी पीने का तरीका अलग है, या फिर हम खाना खा के उठने के बाद उस जगह की सफाई हम नहीं करते। शायद ऐसा कुछ भी नहीं। ये सारे अंतर सिर्फ हमारी सोच के अंतर हैं, बाकी हम सब मनुष्य हैं। वी ऑल आर ह्यूमंस, वी ऑल हैव शेयर द सेम फीलिंग्स ऑफ लव, हेट्रेड, हंगर, and all the feelings are the same. After all, we all are human beings. When I was leaving his house, Shivra Subramania Iyer invited me to join him for another dinner again the next weekend. जाते वक्त बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि अगले वीकेंड पे फिर हमारे घर आना, अगले शनिवार पे हमारे यहाँ फिर खाने पे आना। Observing my hesitation, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि उनकी पत्नी ने कैसा व्यवहार किया और बच्चा थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है, झिझक रहा है, संकोच कर रहा है, वो कैसे हाँ बोल दे। He told me not to get upset. उन्होंने बल्कि मुझसे कहा, देखो कलाम, अपसेट मत हो। Saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. यदि आप समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, सुधार लाना चाहते हैं, तो जब हम हवा के विपरीत चलते हैं तो हवा का वेग हमें सहन करना पड़ता है। यानी तुमको विरोध और इस टाइप के जो बिहेवियर हैं ये सहन करने ही होंगे यदि समाज में तुम एक बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हो। यही डिफरेंस आता है जब हमारी परवरिश एक साफ सुथरे माहौल में हो, एक सुलझी हुई और एक अच्छी सोच के बीच में हमारी परवरिश होती है, तो वही सब हमारे व्यक्तित्व में भी दिखता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, अपने आप को हमेशा पॉजिटिविटी में ट्रेन करें। ट्राई टू कीप योर सेल्फ इन द कंपनी ऑफ गुड, सक्सेसफुल एंड पॉजिटिव पीपल एंड ट्राई टू अवॉइड वॉचिंग एनी सच प्रोग्राम दैट सर्व्स नेगेटिविटी एंड वायलेंस, क्योंकि ये चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भर जाती हैं और
हमें पता ही नहीं लगता कि लंबे समय में हम खुद कब वैसे बन गए। इसीलिए हमेशा अच्छी सोचें, अच्छे लोगों के साथ में रहें और आप भी अच्छे ही बनेंगे। When I visited his house the next week, Shiv Subramania Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. लेकिन आश्चर्य है, अगले हफ्ते जब मैं उनके घर गया तो उनकी जो पत्नी है मुझे हाथ पकड़ के खुद अपनी किचन में ले गई और इस बार उन्होंने खुद मुझे खाना सर्व करके दिया और खाना खिलाया। यहाँ से हमें पता लगता है कि समाज में कोई धर्म जाति विशेष अच्छा या बुरा नहीं होता, ये व्यक्ति विशेष की अपनी सोच होती है। एक तरफ इनके साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर जी थे जो साफ सुलझी सोच वाले थे, और वहीं एक दूसरे टीचर भी थे जिन्होंने शुरुआत में तो भेदभाव किया, लेकिन जब पूरा समाज एकजुट होकर ऐसी चीज़ों का विरोध करता है तो ऐसी ताकतें या ऐसी सोच अपने आप कमज़ोर पड़ के ख़त्म हो जाती है। इसीलिए हमें भी एक ऐसा समाज बनाने की ज़रूरत है जहाँ एक दूसरे के प्रति टॉलरेंस की फीलिंग्स हो, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट की फीलिंग्स हो। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और भारत को लगभग आज़ादी मिलना तय हो गया, आज़ादी मिलने ही वाली थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी। और गांधी जी ने इस बात की घोषणा कर दी कि अब भारत का निर्माण भारतीय लोग करेंगे, यानी अब हम अपने देश के नियम कायदे और समाज को खुद डेवलप करेंगे, अंग्रेज़ों की मर्जी के हिसाब से कुछ नहीं चलेगा। The whole country was filled with an unprecedented optimism, और पूरे देश के अंदर एक उम्मीद और आशा की किरण जाग गई। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in रामनाथपुरम। मैंने अपने पिताजी से परमिशन ली कि मैं रामेश्वरम छोड़ के जाना चाहता हूँ। आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाना होगा रामनाथपुरम में, क्योंकि गांव में तो एक एलिमेंट्री या बेसिक एजुकेशन तक की ही पढ़ाई हो सकती थी, लेकिन उनके अंदर पढ़ने की एक इच्छा थी और उन्होंने ये इच्छा अपने पिताजी के आगे जताई। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. उन्होंने मुझसे कहा, अबुल मैं जानता हूँ तुम्हें जाना होगा, अगर तुम्हें ग्रो करना है, पनपना है, तो तुमको घर के कंफर्ट से बाहर निकलना होगा। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? एक समुद्री चिड़िया होती है सीगल, वहां तो रास्ते में कोई लैंडिंग भी नहीं है, कोई पेड़ भी नहीं, तो क्या वो अकेले नहीं उड़ती? वो तो सूरज की ऊंचाइयों को छूती है, और उसके लिए अकेले रहने का ये मतलब नहीं कि तुम हमसे अलग हो जाओगे, या तुम्हें तरक्की करनी है तो तुम्हें अलग जाना ही होगा। ऊंचाइयों को छूना है तो तुमको अपने घोंसले से बाहर निकलना होगा, घर की सुख सुविधा कंफर्ट्स को छोड़ के जाना होगा। ही कोटेड खलील जिब्रान। खलील जिब्रान एक फेमस पोइट रहे हैं। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। कि हमारे बच्चे हमारे अपने बच्चे नहीं हैं, उनका अपना एक अलग जीवन है, उनका एक अलग व्यक्तित्व है। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वे हमारे माध्यम से इस दुनिया में ज़रूर आते हैं, लेकिन वे हमारे नहीं हैं। यू मे गिव देम योर लव। अपने बच्चों को हम अपना प्यार तो दे सकते हैं, बट नॉट योर थॉट्स। उनका हम विचार जबरदस्ती अपने विचार उनके मन में नहीं भर सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनका अपना एक अलग जीवन है, उनका एक अलग व्यक्तित्व है, उनकी अपनी एक अलग सोच है। और जैसे हर पौधे को पनपने के लिए एक खुली जगह देनी होती है, वैसे ही अगर अब्दुल को भी हम चाहते हैं कि वो पनप जाए और खूब तरक्की करे,
तो हमें उसे घर के बाहर पढ़ने के लिए भेजना ही होगा। So here we can conclude that his father was a truly refined personality, and whatever Dr. Kalam inherited, he inherited all the goodness from his parents as well as from all those wonderful people who influenced his life in a positive manner. अगर हम भी अपनी परवरिश, अपने बच्चों की परवरिश ऐसी ही एक सुलझी और साफ सोच वाले समाज में करेंगे तो फिर हमारे समाज में एक नहीं अनेकों अनेक ऐसे डॉक्टर कलाम जैसे व्यक्तित्व जन्म लेंगे। सो आई होप you all enjoyed the session. So thank you very much for joining, and please don't forget to like, subscribe and share our channel LinguaSolves.